اس مزار مقدس میں جو بڑی خاٹو شریف کے نام سے جانی جاتی ہے، خوبصورت پہاڑیوں میں یہ خوبصورت جو درگاہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو، یہ بہت ہی کراماتی درگاہ ہے۔ شمس الدین عرف سمن دیوان رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مقدس، یہ اندر والا روٹ ہے جو آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، ایک دم جھک کر جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ اس خوبصورت مزار کو دیکھ رہے ہیں، تو جب کبھی بھی آپ اجمیر شریف کا سفر کریں تو یہاں پر بڑی خاٹو شریف میں ضرور حاضری دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ہم ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم اس وقت ہیں راجستھان میں، ان خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان بڑی خاٹو شریف میں ہم لوگ اس وقت حاضر ہیں۔ بڑی خاٹو شریف میں مزار شریف ہے حضرت خواجہ شمس الدین سمن دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کے بارگاہ میں ہم حاضری دینے کے لیے پہاڑیوں کے خوبصورت راستے سے گزر رہے ہیں، اور وہاں پر حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کی بھی حاضری کروائیں گے۔ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ان خوبصورت پہاڑیوں کے درمیان جو مزار شریف کی زیارت ہم کروانے آپ کو آئے ہیں، یہ خوبصورت سا راستہ اس مزار مقدس میں جو بڑی خاٹو شریف کے نام سے جانی جاتی ہے، یہاں پر وہ مزار مقدس ہے، ہم وہیں آپ کو لے کر چلتے ہیں، بنے رہے ہمارے ساتھ۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے گیٹ پر حضرت سیدنا خواجہ شمس الدین سمنانی سمن دیوان علیہ الرحمہ۔ تو اندر آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں، اور یہاں پر شیرنی وغیرہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر فاتحہ کروانے کے لیے لوگ یہاں سے شیرنی لیتے ہیں، اور یہ گیٹ ہے جو حضرت خواجہ شمس الدین سمن دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پہلی مرتبہ میری حاضری ہو رہی ہے، اور آپ کی بھی حاضری ہم پہلی ہی مرتبہ کروا رہے ہیں، ہمارے چینل سے پہلی حاضری ہے۔ باقی اگر آپ لوگوں نے پہلے دیکھا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دوبارہ حاضری کرواتے ہیں۔ مزار شریف کا مین گیٹ، ہم آپ کو اندر لے کر چلتے ہیں، بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ان خوبصورت وادیوں میں یہ جو وسیع مزار شریف ہے، درگاہ شریف، یہ کراماتی درگاہ ہے، اس کے بارے میں ابھی انشاءاللہ العزیز ہم یہاں کے خادم صاحب سے پوچھیں گے، لیکن یہ مجھے جہاں تک معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ الرضوان کے ساتھیوں میں سے ہیں، انہی کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے جب اپنی دینی و ملی کام کا آغاز کیا تو اپنے ہر چاہنے والوں کو ہر علاقے میں بھیجا کہ تاکہ دین کی تبلیغ ہو سکے۔ تو دین کی تبلیغ کے لیے حضرت خواجہ شمس الدین سمن دیوان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر بڑی خاٹو شریف میں بھیج کر یہاں پر ان سے دین و سنیت کا کام لیا، اور الحمدللہ آج ان کا مزار مقدس بڑی خاٹو شریف میں موجود ہے، جو بڑی خاٹو شریف ہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اور یہاں کی جو ایک سب سے بڑی کرامت ہے وہ ہم آپ کو بھی بتائیں گے، اور یہاں کے جو خادم صاحب ہیں ان سے بھی دریافت کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی بتائیں گے۔ اور یہاں مزار شریف کے اندر آنے کے لیے تقریباً 3 راستے ہیں، 3 دروازوں کے ذریعے آپ آ سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے 2 ہی دروازہ کھلا رہتا ہے۔ تو اب آئیے بلا تاخیر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو خادم صاحب ہیں ان سے ہم جو ہے اس مزار شریف کے بارے میں کچھ معلومات جانیں گے، اور وہ جو کراماتی جو بتایا جا رہا ہے کہ کنکر جو چاول کا ہوتا ہے اس کو کھانے سے کیسے لوگ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ یہاں کے خادم صاحب ہیں جن کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی خادم صاحب، ہمیں یہ بتائیں کہ یہاں پر جو چاول والی کرامتی پتھر جو مشہور ہے، جو لوگ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو السلام علیکم، میرا نام صدام حسین ہے، اور سرکار سمن دیوان رحمۃ اللہ علیہ کا غلام ہوں، اور سرکار حضرت خواجہ سید شمس الدین سمن دیوان آپ کا نام ہے، اور آپ غریب نواز کے پہلے دیوان ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں جلدی مراد پوری کرنی ہے تو میرے دیوان کے پاس جاؤ، سرکار بہت جلد سنتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ 12 مہینے کے اندر مرادیں پوری ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اور آپ کا مین مقصد ہے نا اولاد کو اولاد دینا، جہاں سے حکیم اور ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں وہاں سے آپ اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ پتھر کا چاول ہے جو پہاڑی کے اوپر ملتا ہے، سرکار کی پہاڑی ہے اس کے اوپر پتھر کا چاول ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مطلب ہر آدمی کو، ہر شخص کو وہاں پہ وہ چاول ملتا ہے۔ وہاں پہ زمین پہ ڈھونڈ کے لانا پڑتا ہے، کھوجنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی خالی نہیں جاتا، سب کو ملتا ہے۔ اور
मतलब लेडीज़ को जैसे टेबलेट वगैरह लेते हैं उस हिसाब से पेट में लेना पड़ता है उसको, टेबलेट की तरह पेट के अंदर लेना पड़ता है। और इंशाअल्लाह ताला 12 महीने के अंदर अंदर उसके बच्चा हो जाता है, लड़का या लड़की कुछ भी जो भी सरकार को नवाज देते हैं, बस बच्चा हो जाता है। और उसके पहले बाल इधर ही उतरते हैं, जारीन लोग आते हैं, मुरादें पूरी होती है और कोई खाली नहीं जाता। यहाँ से फैज़ जारी है, आज भी अल्लाह की रहमत बरसती है, फैज़ मिलता है उन्हीं को जो दिल में रखता है सिफात वली अल्लाह की। मतलब सरकार का इतना करम है कि 12 महीने के अंदर कैसी भी तमन्ना है पूरी हो जाती है। इंशाअल्लाह आपने देखा और सुना भी कि हज़रत खादिम साहब क़िबला ने हमें ये बताया, तो हमें ये जानकारी मालूम हुई कि किस तरह जो है जो बे औलाद होते हैं वो यहाँ से साहिब औलाद होकर जाते हैं। और इस दरगाह की सबसे बड़ी ख़ासियत जो ये है कि कोई भी तमन्ना आप नेक तमन्ना जायज़ तमन्ना यहाँ पर अर्ज़ी डाल कर जाएंगे तो 12 महीने के अंदर पूरा होता है। सुभान अल्लाह, ये सबसे बड़ी करामत है। और बताया ये भी गया खादिम साहब क़िबला के ज़रिए कि ये हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमतुर रिज़वान के पहली दीवान है, यानी दीवान मतलब किताब ही होता है जो हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ इनको बहुत पसंद किया करते थे। और ये भी आपने सुना कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ ही का कौल है कि आपने इरशाद फरमाया जिसको जो कुछ भी चाहिए मुझसे वो हज़रत शमसुद्दीन समन दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से होकर आए, अगर वहाँ से होकर आएगा तो इंशाअल्लाहुल अजीज़ अजमेर शरीफ में उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। तो इस वक्त आप इस खूबसूरत मज़ार को देख रहे हैं, तो जब कभी भी आप अजमेर शरीफ का सफ़र करें तो यहाँ पर बड़ी खाटू शरीफ में ज़रूर हाज़िरी दें ताकि आपकी हाज़िरी अजमेर शरीफ की दरगाह पर मुकम्मल हो सके और अजमेर शरीफ में आपके नेक ख्वाहिशात पूरी होने की जल्द इम्कान भी हो सके। तो चलिए आपको बाहर लेकर चलते हैं। जैसा कि खादिम साहब ने एक बात और कही कि जब यहाँ से जो मन्नती बच्चे होते हैं पैदा होते हैं तो उनका पहला जो मूड़न होता है, बाल उतारे जाते हैं, वो यहीं पर होती है। तो चलिए अभी हम उसको भी आपको दिखाते हैं। तो मज़ार शरीफ से हम लोग बाहर निकले और यहाँ पर भी एक मज़ार शरीफ है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है, जो यहाँ से यहाँ के अर्ज़ी डालकर यहाँ से जो जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद 12 महीने के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो यहाँ पर उनका मूड़न होता है, यहाँ बाल उतारे जाते हैं। यानी पहली मर्तबा जब उसके सर के बाल उतारे जाएंगे तो हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन समन दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुक़द्दस पर उतारे जाएंगे। बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है और खुशादा जगह है। ये मस्जिद है और ये मेहराब है, यहाँ पर नमाज़ें भी होती हैं जैसा कि आप ख़ुद भी देख सकते हैं। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ औलिया अल्लाह होते हैं वहाँ पर मस्जिद तो पाई ही जाती है। और यहाँ पर देखें कुछ लोग जो है यहाँ से फैज़ हासिल कर रहे हैं। ये एक और मज़ार शरीफ है और यहाँ पर जो है चिराग वगैरह जलते हैं। तो यहाँ मज़ार शरीफ के अंदर ये जो है चिराग जलती है और यहाँ से लोग सुरमे की तरह इसको यूज़ करते हैं, अपनी आँखों में लगाते हैं। और उनका ये अक़ीदा होता है लगाने वाले का कि यहाँ से फैज़ मिलेगा और हमारी आँखों को शिफा मिलेगी, उसकी रोशनी बढ़ जाएगी। तो ये वो मज़ार शरीफ है जिसकी ज़ियारत कर रहे हैं आप। जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसी पहाड़ी पर जिस चावल का ज़िक्र खादिम साहब ने किया कि जो पत्थर की चावल होती है वो यही पहाड़ी पर मिलेगा। जो बे औलाद होते हैं वो यहीं से जाकर पत्थर के चावल को तलाश करें और उसको खाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 महीने के अंदर यहाँ से साहिब औलाद होकर जाएंगे। ये इस मज़ार शरीफ की बहुत बड़ी करामत है। अगर आप यहाँ पर आएँ, अगर ये पत्थर इस पहाड़ पर आपको वो पत्थर वाली चावल ना मिले तो आप यहाँ के खादिम साहब क़िबला से रब्ता कर सकते हैं। वो आपको यहाँ की जो चावल है जिसके ज़रिए साहिब औलाद लोग होते हैं वो यहाँ से पत्थर का चावल आपको मिल जाएगा। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि जो तलाश ना कर पाए वो हमसे यहाँ ले सकता है। तो आइए उस चावल के जो दाने हैं, जो पत्थर के चावल के दाने हैं, आइए हम उसको भी खादिम साहब से लेकर के ज़ियारत करवाते हैं। खादिम साहब हमारे साथ आ गए हैं। वो पत्थर का जो चावल है उसकी ज़ियारत हो जाए। हमारे ज़ायरीन जो हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो ख्वाहिशमंद हैं। बड़े सारे ऐसे लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे कि जो बे औलाद होंगे, हो सकता हो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इसके ज़रिए साहिब औलाद कर दे। यही वो पत्थर का चावल है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। इसको एक मर्तबा जिस तरह दवा की गोली खाई जाती है उस तरह खाएंगे तो 12 महीने के अंदर आप साहिब औलाद हो जाएंगे। इस मज़ार शरीफ की सबसे बड़ी करामत है। जैसा कि आप देख सकते हैं चावल ही की तरह है, इसको गोली की तरह खाना है। माशाल्लाह ये खादिम साहब क़िबला के हाथ ही में मौजूद है, जो अगर आप पहाड़ पर ना तलाश कर पाएँ तो यहाँ पर उनके ज़रिए ये हासिल कर सकते हैं।
लोग उस चावल की ज़ियारत कर रहे हैं जिस चावल को दिखाया गया आपको। और ये मज़ार शरीफ बिल्कुल जो है पहाड़ी इलाके में मौजूद है और अभी हम लोगों का सफ़र जारी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जारी रहेगा। और इस चैनल पर जो है तमाम औलिया कराम के मज़ारात की ज़ियारत कराई जाती है। हम लोग वहाँ से दाखिल हुए और अंदर आए और ज़ायरीन अपने सामान की हिफाजत करी। ये तो हर मज़ार शरीफ का हाल ये है कि जहाँ भी लोग जाते हैं उनको ये आगाह किया जाता है कि आप जो है चोरों से होशियार रहें और अपने सामान को बचाए रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम जो यहाँ पर हाज़िर हैं, बड़ी खुशकिस्मती है कि हम सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जा रहे हैं और सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में जाने से पहले यहाँ हाज़िरी हो रही है। मज़ार शरीफ से जब आप बाहर निकलेंगे तो तय खाने में हज़रत की मेन मज़ार है, आपको हम अंदर लेके चलते हैं। वैसे इजाज़त तो नहीं है दिखाने की, लेकिन अंदर तक हम आपको लेकर ज़रूर चलेंगे, लेकिन मज़ार शरीफ की इजाज़त दिखाने को नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जन्नती दरवाज़ा, ये देख सकते हैं आप। ये अंदर आपको लेकर चलते हैं, यही रास्ता अंदर जाएगा, हम चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले यही अंदर थी, लिखा हुआ है और फिर उसके बाद आस्ताना हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन उर्फ सम्मन दीवान रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुक़द्दस। ये अंदर वाला रूट है जो आपको हम दिखा रहे हैं, एकदम झुक कर जाना पड़ता है यहाँ। और क्योंकि अब खादिम साहब की इजाज़त नहीं है तो फिर हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन ये यहाँ से देख सकते हैं पूरा झुक कर आपको आना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर आते हैं ज़ायरीन वो यहाँ तक आते हैं और हज़रत के फैज़ से माला माल होते हैं और यहाँ से फैज़ लेकर जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग बाहर आ चुके हैं और निकल गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक और गलियारा है जिसमें हज़रत के घोड़े के मज़ार है। तो उसकी तारीख़ी वाक़यात जो यहाँ के खादिम साहब बताएंगे। जी ये आप कुछ बयान फरमा रहे थे। ये आप सरकार समन दीवान साहब का घोड़ा है जी, जो मतलब इतना जानदार था जी, जिसमें मतलब पत्थर पे निशान बन जाते थे माशाअल्लाह। जब इसके जो निशानात है ये आप बता रहे थे। ये जो निशानात है ये पत्थर के ऊपर है। ये अल्लाह अकबर, इस पत्थर के निशानात जो है यहाँ पर मौजूद जी, ये पत्थर पहले नीचे था जमीन पे जी, तो इसमें बहुत सारे निशान थे जी, तो ये लगभग धीरे धीरे एक दो खत्म होने लगे, लोग बाग ले जाने लगे, तो ये पत्थर बचा एक पीस जी, ऊपर लगा दिया जी। और बतौर तबर्रुक आप भी देख सकते हैं इसको, ये घोड़े का निशान मौजूद है आज भी। और अंदर लेके चलते हैं। ये आपके सरकार की छड़ी मुबारक है। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये जो है इसको छड़ी बताई गई है जी। जी आपकी छड़ी मुबारक है। ये मतलब बहुत ही बड़ी, देख सकते हैं कितनी बड़ी है। वहाँ तक जहाँ कैमरे की निगाह जा रही है वहाँ तक ये छड़ी है, इतनी बड़ी छड़ी है हज़रत की यहाँ पर मौजूद है बतौर तबर्रुक। अब आप जी, लगभग 800 साल हो गए इसको। 800 साल से ये छड़ी हज़रत की यहाँ मौजूद। मतलब दिमाग सबसे पहले लकड़ी को पकड़ती है। जी जी बेशक, मतलब उसकी औकात नहीं कि इस पे लग जाए कहीं। अल्लाह अकबर, आप खुद देख सकते हैं कि 800 साल ये पुरानी लकड़ी, और इस लकड़ी में 800 साल गुजर गए, लेकिन क्योंकि औलिया अल्लाह का हाथ लग गया जिसकी वजह से इसमें आज तक देवक नहीं लगे हैं। जो आप देख सकते हैं 800 साल पुरानी ये लकड़ी है जो छड़ी हज़रत की थी, इतनी लंबी छड़ी है जो आप खुद भी देख सकते हैं। इसके आसपास पत्थर में दिमक बजाएगी आपको, लेकिन इसके ऊपर नहीं पाएगी। अच्छा माशाल्लाह, देखिए इसके आसपास जो देखिए यहाँ देवक लग गए हैं, लेकिन लग रही है इसके पास इस में, पे लग सकते हैं लेकिन इस पर नहीं लग सकते हैं क्योंकि इस पे हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सम्मन दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह का हाथ मुबारक लग गया है। तो अब हम लोग ऊपर चलते हैं और खादिम साहब का इस बात से शुक्रिया कि उन्होंने यहाँ तक अंदर तक का नज़ारा करवाया और ज़ियारत करवाई। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब कभी इधर आना होगा तो हज़रत सम्मन शाह दीवान रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िरी होती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाने के बाद हम लोगों की वापसी फिर से हो रही है, रिटर्न हो रहे हैं। और इस दरगाह शरीफ पर आने के बाद बहुत सी सारी करामतें हमको भी मालूम हुई और कुछ करामतों का ज़िक्र हमने किया। बेशक अल्लाह के वलियों का ज़िक्र करना और फिर उनकी करामतों का बयान करना हमारे लिए तो बहुत कम वक्त की सारी उम्र अगर हम बयान करें तब भी नहीं बयान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी आएँ तो खादिम साहब का नंबर भी हम डाल देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, तो उनसे रब्ता कर लीजिएगा। अगर आने में कोई दिक्कत होगी तो वो रास्ता तक बताएंगे इंशाअल्लाह। और वो चावल जो हमने बताया था, बे औलाद जो होंगे आपके पड़ोसी भी या ख़ानदान में भी या गांव में भी, तो उनके लिए ज़रूर लेकर जाइएगा ताकि आपको भी सवाब मिले और वो भाई जिसके औलाद नहीं हो रहे हैं वो साहिब औलाद हो जाए। बस यही तमन्ना है और इसीलिए हम सदक़े जारिया के तहत हम लोग मज़ार शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं आपको कि ताकि आप जो है
بزرگوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں کہ کون سے بزرگ کی کیا کرامت ہے، وہاں پر کیا کرامتیں ہوتی ہیں۔ تو ابھی فی الحال ہم باہر نکل رہے ہیں، اب پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔